Hello, dear students. Good morning, everyone. This is the first lecture related to class ninth mathematics from second chapter, that is polynomial. This is chapter number 2, polynomial. And in polynomial, today we will discuss all the concept that is given in this chapter along with some numericals. And then after, in lecture 2, we will solve out. Just after this lecture, I will upload second lecture recently, but in today's lecture only one the concept that is given in your second chapter polynomials. Each and every concept I will explain today, and few numericals based on some concept also I will explain. And the second lecture will contain what? Few conceptual numericals and multiple choice type questions that are very important to examination point of view, and also will be what important for your concept knowledge point of view. Let's see what is the basic concept of polynomial. Polynomial standard form, that is P means what? Polynomial in variable x is equal to a0. A0 is a constant term x power n plus a1 x power n minus 1 plus a2 x power n minus 2 plus a3 x power n minus 3, and at last that is an x power 0. Here a1 0, a1, a2, a3 and an are constant terms, and x that is variable. One thing here very important, that is 0 plus n is equal to 1 plus n minus 1 is equal to 2 plus n minus 2 is equal to 3 plus n minus 3 is equal to, and so on. n plus 0 is equal to what? N. It means the subscript of this coefficient, that is a, that is coefficient of variable x, and 0 means what? Subscript, and a power of variable, that is n. 0 plus n, either 1 plus n minus 1 or each and every terms whenever added in the terms of subscript and power, then will comes what? n. ये पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है. अब उसमें जनरल फॉर्म क्या आता है? लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन. So linear polynomial, that is ax plus b, ax plus b and ax square plus bx plus c, that is quadratic polynomial, and ax cube plus bx square plus cx plus d is cubic polynomial. And ax power 4 plus bx square plus cube x square plus dx plus e, that is biquadratic polynomial. And whenever the power increases, then polynomials terms will be increased according to their higher value. Here the degree 4 higher, that is biquadratic. Higher degree 3 cubic, 2 quadratic. Here nothing given is what? 1. That is linear polynomial. So these are the classification of polynomial on behalf of degree. On behalf of degree classification. Degree based classification. And when only one term, that is 4 or years or 3 years and so on, then such type of polynomial, that is monomial. Whenever two terms ax plus b, x plus 3, y plus 4
then this one will be binomial. Binomial. And same as whenever three term, then trinomial, and above three above two, that is polynomial. So one thing after the classification, that is on behalf of term, how many terms? Only one term, that is monomial, and two term binomial, three term trinomial, and on behalf of degree, when degree 1 linear, degree 2 quadratic, degree 3 that is cubic, and degree 4 that is biquadratic, and so on. So after this type of classification, the main concept, how you just identify, your concept will be clear, this particular expression is polynomial or not. Just see what is the concept of polynomial. Suppose x plus 1 upon x, and here x square plus 1, and here x plus root x, and x plus 1 upon root x. Here four terms are given: a, b, c, and d. Among these four, which one is polynomial and why? What is the reason behind this particular term is polynomial? Very important concept. Just note down. X plus root x. Root x means what? That is variable power rational number. Here rational number means in the terms of p by q. Not only p, also q is available. That is 1 power 2. So here power 1 by 2. And here when we just represent this, x power minus 1. And here what? X power minus half. X power minus half. Except the all are not polynomials. Only one, this is polynomial. And how you select the particular expression is a polynomial? Because here the variable power is 2. Whenever variable power is whole number, it means if x power 0, that is equal to 1, this is also a what? Polynomial. Also a polynomial. ये क्लियर कॉन्सेप्ट अपने दिमाग बैठा लीजिए. जब भी वेरिएबल पावर अगर होल नंबर है, होल नंबर मीन्स चाहे वो 0 हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, उसको अगर गिवन है वो, ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है. ठीक है. तो इस तरह से वेरिएबल पावर होल नंबर, ये क्या आइडिया देता है? ये कॉन्सेप्ट क्लियरेंस कर रहा है कि जब भी वेरिएबल पावर क्या हो, होल नंबर, 3 हो, 2 हो, 1 हो, 0 हो, कुछ भी हो, होल नंबर में 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट. Whenever variable power whole number, then the particular expression is what? Polynomial. And whenever variable power except than whole number, either minus 1 or minus 2 or minus 3 or 1 upon 2 or 1 upon 3 and so on, then there is no chance of polynomial. So after the classification and selecting how the given numbers are polynomials or not polynomials, how, what is the base on behalf of the given selection of polynomial, it is very important. Whenever the variable power whole number, then the concept is what? That is polynomial. Otherwise no chance. Just note down. It means variable power whole number, variable power, or we say that exponent, variable power whole number, the essential concept is the essential concept. Clear? If variable power whole number is not given, it means what? Then the given term is not a polynomial.
क्योंकि मैंने एग्जाम्पल्स के वे भी समझा दिया, एक्स पावर 1 है तो वो भी पॉलिनोमियल है। और एक कॉन्सेप्ट है कि पॉलिनोमियल में जब भी जीरो जैसे जीरो का जीरो से मल्टीप्लाई अगर किया जाएगा या फिर किसी पर्टिकुलर टर्म्स को जीरो से डिवाइड किया जाएगा, जीरो इंटू जीरो और जीरो किसी नंबर को डिवाइड किया जाए, एक्स अपॉन जीरो, ये दोनों केसेस क्या हैं, नॉट डिफाइंड है। इसको हम कहेंगे क्या, नॉट डिफाइंड। जब भी आएगा तो बस नॉट डिफाइंड लिखेंगे हम, ठीक है। इसको नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट हम बता रहे हैं कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल्स के क्लासिफिकेशंस और उसके मेन कॉन्सेप्ट कि कैसे हम लोग क्लासीफाई करेंगे या फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन पॉलिनोमियल है कौन पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या आता है, जीरोज का। जीरोज आपके पॉलिनोमियल देखिए, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक, पॉलिनोमियल हमारे कोई गिवन है, जैसे ax प्लस बी, ये पॉलिनोमियल है, ठीक। इसका जीरोज हम कैसे निकालेंगे, या फिर कोई पॉलिनोमियल इस तरह से दिया है 3x माइनस 5, ये पॉलिनोमियल है, px इज इक्वल टू 3x माइनस 5। जैसे कोई पॉलिनोमियल हो सकता है, इसमें कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं है कि नहीं ax प्लस बी ही होगा। जो भी पॉलिनोमियल होगा, चाहे वो लीनियर हो, पहले लीनियर समझ लेंगे, उसके बाद क्वाड्रेटिक का कुछ सॉल्व करके दिखा देंगे, तो क्यूबिक का करेंगे तो क्यूबिक का भी सॉल्व कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीरो चाहे जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतने जीरोज होंगे। और सिंपली जब भी जीरोज निकाला जाता है किसी पॉलिनोमियल्स का तो उसको फैक्टराइज किया जाता है। अगर वो लीनियर है तो फैक्टराइज करने की कोई जरूरत नहीं, बट क्वाड्रेटिक है तो उसको फैक्टराइज करना क्या है, कंपलसरी है, ठीक। तो देखिए लीनियर का जीरो कैसे निकालेंगे इसका, तो जब भी जीरो निकालना हो तो पुट कर देना है उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर। नाउ पुट px इक्वल टू जीरो, इसको हम पहले सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट। तो px वैल्यू क्या है, ax प्लस बी इक्वल टू जीरो, ax इक्वल टू कितना हो गया माइनस बी, ax इक्वल टू कितना आ गया माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए क्या है, जीरो है, किसका, इस पॉलिनोमियल का। इसका कॉन्सेप्ट, इसका मीनिंग क्या होता है जीरोज का, कि जब हम x की वैल्यू इतना रखेंगे तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चेक करिए जीरो हो रहा है कि नहीं। देखिए px इक्वल टू है क्या, ax प्लस बी। कभी कभी चेक करने के लिए देता है, चेक द गिवन वैल्यू इज जीरो या पॉलिनोमियल और नॉट। तो चेक कैसे करते हैं, देखिए p x की जगह क्या रखेंगे माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू ए इंटू माइनस बी अपॉन ए कैंसिल हो गया, तो आया क्या, जैसे ए कैंसिल हो गया बचा क्या माइनस बी प्लस बी इक्वल टू जीरो। मतलब पॉलिनोमियल वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। तो ये श्योर हो गया कि पॉलिनोमियल जब उस वैल्यू पे जीरो हो जा रहा है तो जो वैल्यू हो क्या उस पॉलिनोमियल का जीरो है, क्लियर। तो सिंगल है। अभी इसमें हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए जैसे क्वाड्रेटिक में दिया है एक्स स्क्वायर, सिंपल क्या बता रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है। इसका हमको जीरो फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, जीरो। तो पहला काम क्या करेंगे, इसको जब भी जीरो फाइंड आउट करना हो तो इस px को क्या कर देंगे, जीरो के बराबर कर देंगे। पुट px को क्या कर दिया हमने, जीरो कर दिया। तो जैसे px को जीरो किया तो px की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है क्या, ये एक फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बी स्क्वायर को हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं या पहले लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी फार्मूले में ये सेट करेंगे तो आ जाएगा एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस 1 का क्या आ गया, होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। मतलब एक्स प्लस 1 दो बार मल्टीप्लाई किया गया है। एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा एक्स प्लस 1। अगर दोनों को हम बारी बारी से जीरो करेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा माइनस 1 माइनस 1। तो ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, इस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के क्या है, जीरो है। मीन्स माइनस 1 उसका क्या है, जीरो है, क्लियर।
तो इस तरह से किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करना होगा, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, उसको फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत सिंपल केस है, किसी में भी कोई प्रॉब्लम अगर हो, कोई न्यूमेरिकल्स में नहीं समझ में आएगा तो वो पूछ लेंगे आप लोग। और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बहुत ईजी केस है, चाहे वो लीनियर का हो, चाहे पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो। अगर फैक्टराइजेशन आ गया तो हम लोग जीरोस क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल केस है जीरोज फाइंड आउट करना। किसी भी पॉलिनोमियल्स का जीरोज अगर निकालना है तो श्योर है कि उसको फैक्टराइज करना ही पड़ेगा। जैसे मैं इक्वेशन और लिखने जा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल है। ऐसा क्या करना, हमको जीरोज निकालना है। क्या निकालना है, जीरोज। तो इसका 6 वन 6 पर निकाल लेंगे, कंपेयर करेंगे। जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6, तो बी एक्स प्लस 6 से करेंगे तो इस ए का सी में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसी 6 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, 2 3। क्लियर। कभी कभी 1 भी यहाँ लेना पड़ता है, तो उस 1 से भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं हम लोग कभी कभी रेयर केस में। यहाँ पे 3 2 6 और 3 प्लस 2 करने पे क्या 5 आ गया। यहाँ प्लस है तो प्लस करने पे आना चाहिए, माइनस रहेगा यहाँ पे तो माइनस करने पे आएगा। तो श्योर है। तो जो पी एक्स है उसको हम लोग क्या किए, फैक्टराइज कर लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। एक्स कॉमन किया कितना आ गया, एक्स प्लस 2 प्लस 3 कॉमन किया कितना आ गया, एक्स प्लस 2। बचा क्या, एक्स प्लस 2 एक ब्रैकेट में, एक्स प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में। हमको निकालना क्या है, जीरो निकालना है। सो पुट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -2 एंड एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3। ऐसे जो भी जीरो निकालने होंगे हम लोग क्या करेंगे, उसको निकालेंगे। और देखो इस पॉलिनोमियल्स में सबसे इम्पोर्टेंट सबसे जरूरी क्या है, आइडेंटिटी। अगर सारी आइडेंटिटी लर्न है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तभी मैं सारी आइडेंटिटी लिख दे रहा हूँ। जितनी भी आइडेंटिटी है सब क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। अगर सारी आइडेंटिटी लर्न रहेगी तो न्यूमेरिकल्स में कहीं कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। मैं आइडेंटिटी एक बार लिख रहा हूँ। कभी कभी न्यूमेरिकल्स जो होते हैं आइडेंटिटी पे डायरेक्ट दे दिए जाते हैं। आइडेंटिटी में सबसे पहली आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। पहली आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके बाद थर्ड आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, अक्सर न्यूमेरिकल्स इसी पे आते हैं। अभी इसके मैं न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करूंगा, एक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, लेंदी भी है, बट सॉल्व करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। इसके बाद नंबर 4 आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। पहले स्क्वायर कैलकुलस देख लिया, उसके बाद तो क्यूब का किया जाए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसमें कहीं कहीं माइनस भी कर दिया जाता है, चाहे यहाँ पे माइनस किया जाए, चाहे यहाँ पे किया जाए, चाहे दोनों जगह कर दिया जाए, या तीनों जगह कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। बस हमको मालूम होना चाहिए कि माइनस और प्लस का प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस का प्रोडक्ट क्या होता है, प्लस होता है। बस इतना मालूम रहेगा तो हमको आइडेंटिटी सारे लर्न करने की जरूरत नहीं है, केवल याद करेंगे सारा काम हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी नंबर 4। इसके बाद 5 लिखिए। 5 का आंसर क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब 6 नंबर पे क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर। जब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, बाकी सब प्लस।
यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, बीच में यहाँ माइनस ए बी क्या होगा, एक एडजस्ट कर लेंगे। अब इसके बाद आइडेंटिटी 5, 6 के बाद नंबर 7, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाएगा। और नंबर 8, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। क्लियर, ये होगी आइडेंटिटी। इसके बाद एक और आइडेंटिटी है जिसको बताने जा रहे हैं हम, ध्यान दीजिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नंबर 9 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। फिर सुन लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, देखिएगा पूरा थोड़ा सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू होगा क्या, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी डी। इसको ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जितनी भी आइडेंटिटी मैंने बताया, अगर ये आइडेंटिटी लर्न रहेगी आपको, तो कोई भी न्यूमेरिकल किसी भी बुक का, चाहे एनसीईआरटी का हो, चाहे वो किसी भी साइड बुक का हो, कभी भी किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मैं 2-4 न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ इस लेक्चर में, बाकी 10, 15, 20 जितने भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे आप लोग, उतना प्रैक्टिस होगा। किसी को कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा तो हो सकता है सेकंड लेक्चर में इसका बनाऊंगा पॉलिनॉमियल्स का, उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी इसमें फैक्टराइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, लीनियर का तो कोई मतलब नहीं, वो तो ऑलरेडी फैक्टराइज है। जब क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन हो, क्यूबिक का, तो क्वाड्रेटिक का इजी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्यूबिक की फैक्टराइजेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उसको मैं सॉल्व करके, उसके 2 मेथड होते हैं जनरली। एक रिमाइंडर थ्योरम करके बनाया जाता है कि पहले कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं एक्स की, और वैल्यू या तो +1 +2 +3 या तो -1 -2 -3, इतने में ये वो सॉल्व हो जाता है। सारी वैल्यू अगर पॉजिटिव है पॉलिनोमियल की तो माइनस लेंगे श्योर है, अगर कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव तो इसमें पॉजिटिव भी लेने से हो सकता है और नेगेटिव भी लेने से हो सकता है। तो ये सब डिस्कशन हम लोग करेंगे सेकेंड लेक्चर में। अभी फिलहाल फर्स्ट लेक्चर में मैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जा रहा हूँ सॉल्व करूँ, उसको देखिए आप लोग। इस आइडेंटिटी को आप लोग कोशिश करके क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे। जब आइडेंटिटी लर्न रहेगी तभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इसलिए फर्स्ट concept anyhow, either by writing 2 times 3 times as much as you can write down in notebook, and then the formula will be learn out। पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं फैक्टराइज। देखिए फैक्टराइज x पावर 4 -1, इसको फैक्टराइज करना है। इस पे ऑप्शन भी बन सकता है, ये क्वेश्चन दे दिया है, 4 ऑप्शन दे दिए हैं, उसमें जो सही होगा उसको टिक कर लेंगे। तब फैक्टराइज करने आएगा तभी वो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक कर पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, अभी बन गया यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होगा क्या, ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -1 को भी क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे। तो सिंपल है, एक बार देखिए जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये एक्स -1 एक्स प्लस 1, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया इसका सोल्यूशन। क्लियर, इसके बाद एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम। देखिए उसको, जो कि आइडेंटिटी नंबर जो 9 हमने लिखा था उसी पे बेस्ड है, इसको नोट कर लीजिए। सिंपल केस है, ये देखिए क्वेश्चन है, इफ
a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन prove that a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू व्हाट 3abc। इसमें दो क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है, दूसरा क्या बन सकता है a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल टू 3 भी बन सकता है। ये भी एक क्वेश्चन है। ये प्लस ये दोनों मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, इजी है, बस केवल एक आइडेंटिटी जो मैंने बताया आइडेंटिटी नंबर 8 उसी को आपको क्या करना है रिमाइंड करना है। सोल्यूशन देखिए, वी नो दैट जब भी इसमें क्वेश्चन आएगा तो हम लिखेंगे क्या आइडेंटिटी हमको पहले से क्या है वेल नोन है। वी नो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर? ये हमको क्या आइडेंटिटी मालूम है। अब यहाँ क्या करेंगे पुट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। जैसे ही a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो अपर इक्वेशन जो आइडेंटिटी हमको मालूम है ये क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए किस में कन्वर्ट होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो 0 में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आ गया हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट रहेगा माइनस 3abc, इसके बाद आ जाएगा स्टेप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। पहला प्रूफ हो गया। जैसे ही पहला प्रूफ हो गया हमारा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सेकंड फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम गिवन इक्वेशन। फ्रॉम गिवन सॉल्यूशन लिख सकते हैं। क्या सॉल्यूशन क्या बता रहा है उसको कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या है 3abc है। ये कब पॉसिबल है जब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 0 है। व्हेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है 0 है। जैसे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या 0 है तो ये हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे इसका डायरेक्ट व्हेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या करेंगे ए बी सी से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए बी सी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3abc अपॉन abc इक्वल टू abc कट गया कितना आ जाएगा 3। अब इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है देखिए a क्यूब अपॉन abc करेंगे तो एक a इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a स्क्वायर अपॉन bc, a स्क्वायर अपॉन bc प्लस b स्क्वायर अपॉन ca प्लस c स्क्वायर अपॉन ab इज इक्वल टू कितना बचेगा 3। हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया सेकंड हो गया। क्लियर? इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल्स होगा अगर हमको आइडेंटिटी मालूम है तो उस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं श्योर, इसमें कोई डाउट नहीं कि वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करिएगा जितनी भी हमने आइडेंटिटी बताई है चाहे वो फर्स्ट हो सेकंड हो थर्ड हो फोर्थ हो फिफ्थ हो अप टू 9 जितनी भी आइडेंटिटी हमने बताई है। और पॉलिनोमियल्स कैसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि गिवन अगर 4 वैल्यूज है एक्सप्रेशन की तो उसमें पॉलिनोमियल्स कौन है। तो पॉलिनोमियल्स मतलब सिंपल सोल्यूशन है कि उसको हम लोग क्या करेंगे सिंप्लीफाई फॉर्म अगर है तो ठीक, नहीं है तो उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में क्या करेंगे अरेंज करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि वेरिएबल पावर अगर वो होल नंबर है तभी तो वो क्या है पॉलिनोमियल है, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं है। अगर वेरिएबल पावर इसे -1 आ रहा है या 1/2 आ रहा है या -1/3 आ रहा है इस तरह का कोई नंबर आ रहा है वेरिएबल पावर तो वो समझ लीजिए कि क्या है पॉलिनोमियल नहीं है।
सो इससे प्रैक्टिस करिएगा। लेक्चर नंबर 2 जल्दी हम अपलोड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।